Good evening, beta. So now you are starting a very new concept of science. Keep your books aside. Only you have to keep your copies and pencils or pen, whatever you are having in front of you. And you have to keep your mind open. Don't have to think any other thing. First, I am letting you know about mass. What is mass? Mass. What is mass? Tell me, any one of you. Mass is the matter with which a particular thing is made up of. Mass is the matter with which a particular thing is made up of. The matter with which an object is made is called mass. The matter with which an object is made is called mass. So what is this matter? Take an example of chair. Chair is made up of, if it's a plastic chair, that chair is made up of plastic. So the plastic is the matter with which that plastic chair is made up of. So that plastic is the mass of that plastic chair. If it's a wooden chair, so that wooden chair is made up of nails, wood. These two things are with which that wooden chair is made up of, because that nails is needed to fix it up. So nails and wood. And with what nails are made? Nails are made with iron. So nails and wood are the mass of that wooden chair. Mass is an scalar quantity. Mass is a scalar quantity. I'll be teaching you some interesting term about this, which you will not be finding in your books. I think my network, there is some network problem. See, 1 GB. Mass is a scalar quantity. What do you mean by scalar quantity? When I taught you in the school about quantity, I told you about two things. One is magnitude and another is direction. Where only magnitude is there, that is called scalar quantity. And where both magnitude as well as direction, both are there, that is called vector quantity. I'll be letting you know about vector also. First you understand what is scalar quantity. A scalar quantity is having only magnitude. And what do you mean by magnitude? Magnitude is having a number has to be there and unit has to be there. Suppose 5 kg. So this kg is what? Unit. And this 5 is what? Number. You people are understanding? समझ में आ रहा आप लोग को? मैं हिंदी में भी बोलूंगा. जो मेरे हिंदी वाले स्टूडेंट है, कोई व्यूअर होंगे तो समझ जाएंगे फिर जिससे. मैग्नीट्यूड अगर 5 kg है, ये 5 kg में this 5 is the number and kg is unit. Now, mass is a scalar quantity where only this thing has to be there. You don't know what is the direction. Acha, when you go to a grocery shop, when your mother asks you to buy some vegetables or potatoes or onions, whatever, so if your mother asks you buy 2 kg of potato,
then what do? You go and ask, भैया 2 किलो तौल दो, तो 2 किलो, what do you say? We assume it as weight, but that is wrong. That 2 kg will never be weight. That will always be mass. That 2 kg is mass. Whatever you bring in by buying from outside, from grocery shop or vegetable vendor, or anything which you buy, which you think that it is weight, by saying it as pound, 5 pound, if you go to that and buying that cake, 2 pound का केक दे दो, 2 pound bread दे दो, तो 2 pound, pound is what? Pound is mass. Pound is not weight. 2 kg, 500 gram, 400 gram, 400 gram, all these things are what? These are mass. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको गलत समझ लेते हैं, हम लोग उसको weight समझ लेते हैं. That is wrong perception. kg will never be weight. That is always mass. I'll be coming to weight later on. First, I'll be learning about mass. This 5 kg is nothing but mass. And this mass, how do we measure it? We measure this mass with common balance. Common balance. And how does it look like? This looks like this. This common balance looks like this. Now you have understood. Whenever you go to the market and those person who weigh it, actually they are measuring the mass, not their weight. Through this, they are measuring their mass, not weight. Understood? Is that clear? Is that clear to all of you? Through this common balance, we are measuring mass. Now, what is the unit of this mass? And I taught you about CGS system, FPS system, and SI system. In CGS system, the unit of mass is gram. In FPS, it is pound. And in SI, it is kilogram, kg. In CGS system, it is gram. FPS, it is pound. And in the SI system, it is kilogram. Now, so what we have learned? Mass is the matter with which a particular object is made up of. Mass is the matter with which a particular object is made up of. Mass is a scalar quantity. In a scalar quantity, we don't have direction. Only magnitude is there. For finding out magnitude, what are the two things needed? Number and unit. 5 kg in 5 kg, 5 is the number and kg is the unit. And this mass is measured by common balance. The unit of mass in CGS system is gram, FPS system pound, SI system kg. Now the thing is, mass is constant. Mass is always constant. Mass is always constant. So, what does it mean? It means that if you take this duster, whatever be the mass of this duster, if you take it to your home, if you carry it to your home, does the size of this duster will increase or decrease? It will remain the same. So it will always be constant. It will always be same. If you will be taking it to mountains, then also its shape and size will remain same. The same thing if you will be carrying it to the mines. Mines means where coal mine, iron ores. So there also the shape and size will remain the same. What does it mean? If it is made up of plastic and this foam, over there if you go to this quarry or mines, over there does
it change with iron or something else? No, it will remain with plastic and foam. This is made up of plastic. So does it change? It will never be changing. It will remain constant. So mass will remain constant for your purpose. For class 9 and 10, it will remain constant. But if you go to class 11 and 12, then what will happen? Then you will be learning. That's what I am telling you. I'll be letting you know so many things which is never being taught in the book. I'll be letting you know about different things. You will be getting a brighter idea about anything. This mass is constant. अच्छा देखो, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins, 3 persons went to moon. These 3 persons went to moon. So when they were on the earth, suppose their weight was 60 kgs. Their weight was 60 kgs. When they have been to the moon, what happened? Their mass changed? Their mass did not change. वो जैसे थे वैसे ही रहे. उनका एक नाक था, 2 आँख था. They have all these things ना. 1 nose, 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, 32 teeth, 1 tongue. Over there when they have reached, तो इनका 2 हाथ जो है 4 हाथ हो गया. यहाँ पे सींग निकल आया. राक्षस हुआ चेंज? नहीं हुआ. उनका मास चेंज नहीं हुआ. वो जिस चीज से बने थे, इट वॉज रिमेन सेम. वैसे का वैसे ही था. नाउ जब 11 12 में अगर आप जाओगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दे दे रहा हूं, तो आप वहां पढ़िएगा. देन यू इफ यू बी स्टडिंग साइंस देन ओनली यू विल बी लर्निंग. वहां पढ़िएगा कि मास जो है वो चेंज हो सकता है. इसको मैं नहीं बोल रहा हूं. इसको आइंस्टाइन ने कहा था. मास इज ऑल्सो चेंजेबल. वो चेंज किया जा सकता है. तो कैसे चेंज होगा? मान लो कोई एक बॉडी है, उसका एक वेलोसिटी होगा. वेलोसिटी मतलब वो मोशन में होगा. वेलोसिटी मींस वो मोशन में. सो मास हैविंग वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 इस फॉर्मूला पे ये डिसाइड होगा कि मास जो है चेंज हो जाएगा. देखिए, इसके बारे में आपको हम एक आइडिया दे दे रहे हैं, जो हम आपको जनरल टर्म्स में से बता सकते हैं वैसा. देखिए, mv मास विद वेलोसिटी. m0 मींस व्हाट? वेलोसिटी 0 है. जब वेलोसिटी 0 है मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट में है. बॉडी अभी रेस्ट में. देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं. I'm standing as it is. तो ये क्या हो गया? मास इज 0. तो मेरा मास इस समय जो है वो कब चेंज होगा? जब हम वेलोसिटी में आ जाएंगे. तब तो कैसा क्या होगा उसको समझा रहे हैं. 1 के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. v मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. and c means velocity of light. mv का मतलब क्या हुआ? mass of the object having velocity. और m0 का मतलब क्या हुआ? mass of the object at rest. If you want to write it down, you can write it. What does it mean? mv means mass of the object having velocity. m0 means mass of the object at rest. 0 means it does not have any velocity. It is not moving. It's not in motion. v means velocity of the object and c means velocity of light. You write it, then I am making you understand. Have you written all these? Now, think of this.
if you change the velocity of that object with the velocity of light, what does it mean? अगर जो ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो मोशन में है, वो मोशन में है, अगर उसका स्पीड लाइट के स्पीड पे कर दिए तो क्या होगा? मतलब ये जो v है ये इतना फास्ट हो जाए, इतना फास्ट हो जाए कि लाइट के स्पीड में चला जाए, ये लाइट के स्पीड में चला जाए। मतलब ये v जो है ये c के बराबर हो जाए। तो v की जगह आपने c लिख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिया, तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर क्या होता है? ये कट गया, तो 1 माइनस 1 0, जीरो का स्क्वायर रूट निकालिएगा क्या होगा? 0। 0 से अगर आप किसी को भी डिवाइड करिए, इफ यू विल बी डिवाइडिंग एनी नंबर विद 0, what you will be getting? You will be getting infinite. What you will be getting? You will be getting infinite. What does it mean? मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग बुक्स में यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका वो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। 10 तक हम लोग यही पढ़ेंगे, 11 12 में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। सोचिए हम लोग जो जो पढ़ रहे हैं उसमें चेंजेस आते जा रहा है और एवरी डे इट इज चेंजिंग। अगर उस मूविंग बॉडी का स्पीड लाइट के स्पीड से कर दे, मूविंग बॉडी का स्पीड लाइट के स्पीड में कर दे तो क्या होगा? वो दोनों, ये v जो है क्या हो गया? c हो गया, और c तो c है ही, दोनों कट गया, क्या हो गया? 1 माइनस 1 0। और आप लोग हमेशा याद रखो 5 0, हम लोग पढ़े हैं ये सब, क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मान लो ये 8 बाई 0 है, इसका मतलब क्या होता है? 0 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा? 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 10 ज़ा 0, 0 100 ज़ा 0, 0 1000 ज़ा 0, 0 मिलियन ज़ा 0। भैया किससे करें, किससे करें, किससे डिवाइड करें? आई डोंट नो किससे डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको इनफाइनाइट बोलती है। व्हाट डिड आई से? इनफाइनाइट। क्या कह दिया मैंने? इनफाइनाइट। मतलब वो मास इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो इनफाइनाइटली बिग, वो मास जिसको हम लोग अभी तक कांस्टेंट बोल रहे थे, वो मास जो है वो इनफाइनाइटली बिग हो जाएगा, इतनी बड़ी हो जाएगी वो। तो वो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, मैंने कहा ना एक्स्ट्रा क्लास, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपका। तो ये मास हम लोग पढ़ रहे हैं कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट मास कैन चेंज ऑल्सो। मास कब चेंज होगा? जब बॉडी का स्पीड, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, जिस बॉडी के मास की बात कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो वो इनफाइनाइटली बिग हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्पीड तक पहुंचते पहुंचते कोई भी ऑब्जेक्ट वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल मतलब क्या हो जाएगा? भाप बन करके उड़ जाएगा। इतना स्पीड पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है। कोई अगर कुदरती ताकत अगर आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान चाहेगा कितना स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ा दे तो हो ही नहीं सकता, वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, वो वोलेटाइल होकर के भाप बन करके उड़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसे करके किया जा सकता है, वैसे इन लोगों को बढ़ाया जा सकता है और ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है तो वो उसको ऐसा वो प्रूफ भी किए हैं, उन्होंने प्रूफ किया है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर फोरफादर्स। हम लोग को अपने बाप दादा की बड़ी इज्जत करनी चाहिए। वी इंडियंस हैव गिवन, देखो आइंस्टाइन मैंने बहुत सारी बार कह दिया, आइंस्टाइन बहुत सारी बात कहा, लेकिन कभी भी अपने बाप दादा के बारे में नहीं कहा। हमारे बाप दादा कौन थे? वो जो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे, वो लोग वेद के टाइम में, इन वेदास इट्स रिटन, ये सब जितनी सारी चीजें हैं ये सब लिखा हुआ। आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था, किसी उसमें पढ़ रहा था कि ये जो फोटॉन्स होते हैं, लाइट जो होता है वो फोटॉन्स से बने होते हैं, फोटॉन्स। आपको ये बोला जाता है कि फोटॉन्स जो होता है उसका मास नहीं होता है,
लेकिन वेदास में बोला गया है कि फोटॉन से, मतलब ये लाइट से 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड भी है। अभी तक हम लोग को यह बताया गया है कि लाइट का स्पीड ही सबसे ज्यादा है, इस पूरे यूनिवर्स में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है। लेकिन वेदास में बोला गया है कि, वेदास मतलब जानते हो ना, वेद में बोला गया है कि लाइट से भी 4 गुना ज्यादा स्पीड किसी का है। उसका नाम उन्होंने दिया है, धनंजय प्राण उसका नाम दिया है। बोले ये धनंजय प्राण है जो लाइट से भी ज्यादा स्पीड में है। अब उन्होंने ये कहा, जो मैं पढ़ रहा था मैं बता रहा हूं आपको, कि उसका 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड है और उस फोटॉन्स में वो धनंजय प्राण होते हैं। तो नाउ यू विल बी सेइंग कि सर उसका स्पीड 4 टाइम्स ज्यादा है। मान लो ये 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल बोल रहा है कि लाइट का स्पीड जो है, आपके समझने के लिए, कि लाइट का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, जो कि आप लोग जब सुनिएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में जाता है। लाइट का स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में। मैं आपके समझदारी के समझ के लिए ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में लाइट जा रहा है। तो वेदास के हिसाब से वो धनंजय प्राण का स्पीड जो होगा वो इससे 4 टाइम्स ज्यादा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। बोले सर वो अगर वो उससे 4 टाइम्स ज्यादा है तो लाइट इतना 4 टाइम्स स्लो कैसे हो गया? लाइट 4 टाइम्स स्लो कैसे हो गया? जब वो 4 टाइम्स ज्यादा है तो ज्यादा लेकर के जाता। तो देखो एग्जांपल देते हैं, एक बस रखो, एक बस खाली बस है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है उसमें, देयर इज नो वन इनसाइड दैट बस। अब वो ड्राइवर चला रहा है, तो ड्राइवर अगर चला रहा है तो उसका स्पीड कितना होगा, ज्यादा स्पीड करके जाएगा। अब उस बस में आदमी लोग को लोड कर दो, माने पूरा पैक्ड कर दो। जब पैक्ड कर दोगे, जब वो बस चलाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो उसी हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। मतलब वो जो आदमी है उसके अंदर, वो क्या कर दिए, उसके वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर दिए। तो ये जो फोटॉन्स है, जो लाइट है, ये लाइट फोटॉन से बना है। तो ये फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स का अपना एक मास है, वो क्या करता है, वो धनंजय प्राण को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए धनंजय प्राण से 4 टाइम्स कम जो है लाइट का स्पीड है, क्योंकि हमारे बुक के हिसाब से प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता ही नहीं है, वो 0 होता है। लेकिन उसमें यह बताया गया है कि फोटॉन्स का भी अपना मास होता है, जो आगे जाकर के जब आप लोग और आगे पढ़िएगा, साइंस लेकर पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि फोटॉन्स का भी मास होता है। ये पता चलेगा आप लोग को, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी के लिए हम लोग का ये है कि मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये मास आपने समझ लिया।